Nandapuram, MP. Currently, I am working in Paytm as a sales manager. Okay, Atul, then why you want to work with our company? आप switch क्यों करना चाहते हैं? You are already working with Paytm as a sales manager. Then why you want to work with our company? Ma'am, for good opportunity and ma'am, can I speak to you in Hindi? I am comfortable in Hindi. मैम मैं थोड़ा अवसरवादी व्यक्ति भी हूँ और थोड़ा सा मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा इंश्योरेंस फील्ड में कर पाऊँ, क्योंकि इंडस्ट्री तेजी से ग्रो भी कर रही है और एक तरीके से जागरूकता भी आ रही है लोगों के पास की इंश्योरेंस को लेके टाइम के साथ। ओके, और आप म्यूट कीजिए प्लीज। जी, शिवांश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Introduce yourself first. My name is Ram Sukhana. I am from Saranpur, Uttar Pradesh. I am currently pursuing my BBA from the group of colleges from the place, which is in Saranpur district. I completed my 12th from my native city only. Okay, can you tell something about your strengths and weaknesses? My weakness is, if I am being honest, my weakness is my family. It is also my family. Okay, आप मुझे कोई दो बेनिफिट्स बता सकते हैं? अगर कोई एक पर्सन इंश्योरेंस लेता है, so what are the basic benefits जो उस पर्सन को रिसीव होगा? His future will get safe and his family's future will get safe. Okay, so basically you are trying to say अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस लेता है, so वो basically आपकी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, right? Okay, आप म्यूट कीजिए प्लीज। I will get back to you. आयुष कुमार, अनम्यूट कीजिए प्लीज। Ayush Kumar. Yes, introduce yourself first. My name is Ayush Kumar. I am from Patna, Bihar. I have completed my bachelor degree in BCom with Patna University. I am hardworking and self-motivated person. Okay, you just said you are a hardworking and a self-motivated person. So मान लीजिए अगर आपको मैंने टीम लीडर की पोस्ट के लिए हायर किया, so आप अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करेंगे? Okay, due to some reason आपकी टीम काफी डिमोटिवेटेड फील कर रही है, so as a team leader, what's going to be your approach to motivate your team? मैं समझाऊंगा, चेयर करूंगा, उनको मोटिवेट करूंगा। कैसे मोटिवेट करेंगे? That's what I'm asking you right. By your words or by your action? आप अपने खुद के काम में इम्प्रूवमेंट करके उनको मोटिवेट करेंगे या फिर आप उन्हें अपने वर्ड्स के थ्रू मोटिवेट करेंगे? कैसे कम मोटिवेट करेंगे? दोनों के थ्रू करूंगा। आप बता सकते हैं डिसिप्लिन एक टीम लीडर के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत रोल प्ले करता है। Why? Can you tell me in 2 sentences supporting your answer? Okay, Ayush, आप म्यूट कीजिए. I will get back to you. I can still see कुछ कैंडिडेट्स हैं यहाँ वीडियो ऑन नहीं है. कनिष्का, प्रदीप, सुब्रोतो, please on your video. Else I will remove you. This is the last warning. अगर आपका अब वीडियो ऑफ होता है, then I will start removing the candidates. Okay. Okay, yes. Vijay, please unmute yourself. Vijay, your voice is not clear right now. You are not audible to me. I will get back to you. Please आप अपने network connection check कीजिए. Okay, next Vivek. Vivek, please unmute कीजिए. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Introduce yourself first. Ma'am, my name is Vivek Kumar Shah. I am from Bihar. I am currently pursuing BTech second year. That's all. Okay, can you tell me any 2 qualities जिसकी basis पे आज मुझे आपका selection करना चाहिए? क्या मैम? आप मुझे कोई 2 qualities बता सकते हैं आपकी जिसकी basis पे मैं आज आपका selection करूं? आप कोई 2 qualities बताइए please. मैम, first of all,
sir. Okay. And second? Second, मतलब हर चीज हैंडल करना अच्छे से आता है। अगर मैं आपको 10 लोगों का टीम प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप अपनी टीम को एफिशिएंटली लीड कैसे करेंगे? मैम डिपेंड करता है कैसे, मतलब किस वर्क पे काम कर रहे हैं। What do you think, according to you, सबसे important quality of a team leader क्या है? What is the most important quality of a team leader? No idea. Vivek, आपका जो communication skills है right now, I don't think it's up to the mark. So I don't think you are qualified for this post right now. So I'm removing you. So better luck next for the next job. Vijay, am I audible to you now? Vijay, am I audible to you? Hello. Yes, Hello. Vijay. Introduce yourself first. Ma'am, my name is Vijay Arwar and my graduation complete in BA 56%. That's all you have to say about your introduction. My name is Vijay Arwar. Vijay, I'm asking आपको यही बोलना है अपने इंट्रोडक्शन में? नहीं मैम, क्या मैम वो आवाज नहीं जा कनेक्ट नहीं मिला, इंटरनेट नहीं है सीधे तरीके से। विजय, आप एक काम कीजिए, आप लीव लीजिए बिकॉज आपका वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी राइट नाउ। सो आपके जो भी रिस्पेक्टिव लीडर्स हैं आप उन्हें टेक्स्ट कीजिए, वो आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में चांस दे देंगे प्लीज। ओके, ठीक है मैम, ओके। ओके, प्रदीप, कनिष्का एंड रोहित कुमार, प्लीज ऑन योर वीडियो एल्स आई हैव टू रिमूव यू। मैंने आपको ऑलरेडी वन वार्निंग दे चुकी हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको एंटरटेन नहीं करने वाली अगर आप ऐसे रहेंगे तो। ओके, यस रोहित, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। Ma'am, my name is Rohit Kumar Tiwari. I'm from UP. I belong in Bihar. I am currently passing in BCom second year. Yes, ma'am. Okay. Can you tell me, can a team leader be selfish according to you, or shall he be workaholic? जी मैम। Can a team leader be selfish? टीम लीडर को कैसा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वो सेल्फिश होना चाहिए या फिर वर्कaholic होना चाहिए? नहीं मैम, सेल्फिश तो नहीं होना चाहिए, वर्कहोलिक होना चाहिए। Okay, आप मुझे कोई 2 स्टेटमेंट बता सकते हैं टू सपोर्ट योर आंसर? जी मैम, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए उन्हें, अपने टीम के साथ, अपने मतलब जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ, और मतलब वो हर स्टेप उनको कुछ न कुछ सिखाना चाहिए। अगर आपकी टीम कोई डिफिकल्टी फेस कर रही है या फिर उन्हें कोई चीजें समझ नहीं आ रही है, सो एज अ टीम लीडर आप अपनी टीम को कैसे एफिशिएंटली हैंडल करेंगे? मैम, अगर कोई चीज उन्हें समझ नहीं आ रहा तो उनके लिए स्वयं मदद हम करेंगे, और मतलब हम उनका मदद करेंगे, और उत्साह बढ़ाएंगे मैम उनका। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रहा तो उनका उत्साह हम बढ़ाएंगे। ओके, आप म्यूट कीजिए प्लीज। There is one candidate named Pradeep Kumar. I'm removing you because आपको मैं 2 बार वार्निंग दे चुकी हूं and still you are not sincere about this interview session. Okay? Okay. Let's move on to next candidate, Kanishka. Kanishka, please unmute कीजिए। Kanishka, am I audible to you? Kanishka, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Please try to speak again. I will get back to you. आप म्यूट कीजिए प्लीज। Okay, Subrata. Yes, ma'am. Unmute कीजिए please. Yes, ma'am. Okay, introduce yourself first. Ma'am, I'm a student. I live in Jamshedpur, Jharkhand. I have been studying in BCom second year. Okay, can you tell me something about your strengths and weaknesses? Ma'am, I have good knowledge about marketing, and already I have work in freelancing, and I'm doing right now. Okay, can you tell me what you understand by claim settlement ratio? Pardon, please, ma'am. What do you understand by claim settlement ratio? What do you know about claim settlement ratio? Ma'am, I don't know about it. Okay, can you tell me who's the brand ambassador of Bajaj Allianz currently? एक काफी famous cricketer है, who's the brand ambassador? So can you tell me the name of that person? Jalejan, I don't know what name. Okay, what do you know about our company? आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? Ma'am, it's a finance company.
a person takes an insurance, what are the main benefits that a person will be receiving after taking insurance? Ma'am, I have to say the beneficial thing about this, what the beneficial for them should take the insurance. I'm asking you, अगर मान लीजिए आप life insurance लेते हैं, so what all are the benefits you will be receiving from our company side? Ma'am, What are the basic benefits? ma'am, I will see that what the benefit I will get throughout my life. Okay, आप म्यूट कीजिए, I will get back to you. Okay. इफ्तिकार अली, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज. इफ्तिकार अली, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए. माइक की ऑप्शन है यहाँ पर, उस पर क्लिक कीजिए प्लीज. आपकी स्क्रीन पे चेक कीजिए, माइक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके अनम्यूट कीजिए. There's some network issue from his side. He can't continue like this. Okay. सभी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है? इंट्रोडक्शन इज डन? ओके. ओके, शिवांश, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज. शिवांश, मान लीजिए अगर आपको कोई न्यू आइडियाज अपनी टीम में इंप्लीमेंट करना है एज अ टीम लीडर, सो व्हाट्स गोइंग टू बी योर अप्रोच? आप अपनी टीम पे विल यू अप्रिशिएट द आइडियाज जो आपकी टीम आपको सजेस्ट कर रही है, या फिर एज अ टीम लीडर आप अपने ही आइडियाज अपनी टीम पे इंप्लीमेंट करेंगे? No, ma'am. I will try to understand their point of view, and then I will decide that it's right to implement or not. Okay, so you will appreciate the ideas जो आपकी टीम आपको सजेस्ट करी है, right? Yes, ma'am. Okay, आप म्यूट कीजिए. आयुष, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. आयुष, अनम्यूट कीजिए. यस मैम. ओके आयुष, मान लीजिए मैंने आपको टीम लीडर की पोस्ट के लिए हायर कर लिया एंड आपके 2 टीम मेंबर में फाइट हो गया. ओके, एंड उनकी फाइट की वजह से आपके ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है. ओके, सो एज अ टीम लीडर व्हाट्स गोइंग टू बी योर अप्रोच? आप वो फाइट कैसे रिजॉल्व करेंगे? आप उनसे 1-to-1 कम्युनिकेशन करेंगे या फिर आप उनसे ग्रुप में बात करेंगे? नहीं मैम, ग्रुप में बात करूंगा और समझाऊंगा कि फाइट किस चीज के लिए हो रहा है, उसका सॉल्यूशन दूंगा, सॉल्यूशन निकालूंगा. ओके आयुष, डोंट यू थिंक अगर आप ग्रुप में बात करते हैं तो वो फाइट इंक्रीज होने वाला है? डोंट यू थिंक आपको फर्स्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन करना चाहिए? नो मैम, ग्रुप में जो बात Okay, होता है वो so सही आपको रहता है. Okay, आप म्यूट कीजिए प्लीज. ओके अतुल, आप अनम्यूट कीजिए. यस मैम. अतुल, व्हाट डू यू थिंक, जो एज अ टीम लीडर अगर आपको अपनी टीम को एफिशिएंटली लीड करना हो, सो व्हाट आर द बेसिक थिंग जो आप अपने माइंड में रखेंगे अपनी टीम को एफिशिएंटली लीड करने के लिए? मैम, पहले तो ट्रेनिंग का रहता है मेरा कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हम मार्केट में सेल करने जाते हैं, उसका बेसिक नॉलेज से लेके मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए हमारे एम्प्लॉय को, और डिसिप्लिन होना चाहिए एम्प्लॉय के अंदर जो हमारी टीम में हमारे साथ काम करते हैं. और उनका हमें अगर किसी फेज भी आते हैं, कम ज़्यादा होता है कभी कभी, तो उसके लिए उनका मोरल भी बढ़ाना होता है मैम, तो मोरल सपोर्ट भी जरूरी रहता है. और यही बेसिक चीज़ों के साथ मैं भी काम करता हूँ अपनी कंपनी में, अपनी टीम के साथ. ओके, आप म्यूट कीजिए प्लीज अतुल. ठीक. ओके, तेजस आप अनम्यूट कीजिए. Yes, ma'am. तेजस, मान लीजिए इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आपको एक मोबाइल शॉप में सिलेक्शन हो गया है एज अ सेल्स पर्सन. ओके, एंड आप सभी जानते हैं हर एक मोबाइल शॉप में सारी कंपनीज के फोन अवेलेबल रहते हैं. आपकी कंपनी में भी सारे फोन्स अवेलेबल हैं, आपकी शॉप में भी सारे फोन्स अवेलेबल हैं. ओके, मान लीजिए इफ आई एम योर मैनेजर, मैंने आज आपको एक्सप्लिसिटली बोला है आज आपको सिर्फ ओप्पो का फोन सेल आउट करके दिखाना है. ओके, बट आपके जो कस्टमर आ रहे हैं वो प्री माइंड सेट करके आए हैं, उन्हें आपसे सिर्फ सैमसंग का फोन परचेज करना है. ओके, सो द सिचुएशन इज आपको सेल आउट करना है एज अ सेल्स पर्सन ओप्पो का फोन, एंड आपके कस्टमर आपसे परचेज करने आ रहे हैं सैमसंग का फोन. ओके, सो ऐसी सिचुएशन में आप अपने कस्टमर को कैसे कन्विंस करेंगे आपसे ओप्पो का फोन परचेज करने के लिए इंस्टेड ऑफ सैमसंग? मैं आपको कस्टमर भी प्रोवाइड कर रही हूँ. जस्ट अ सेकंड, शुक्रोतो अनम्यूट कीजिए प्लीज. यस मैम. You have to act as a customer. आप तेजस से सैमसंग का फोन परचेज करने जा रहे हैं एंड तेजस यू हैव टू एक्ट एज अ सेल्स पर्सन. आप शुभ्रतो को ओप्पो का फोन सेल आउट करेंगे. कम्युनिकेट कीजिए प्लीज. Hello. हेलो.
Yes, sir. I need a Samsung mobile. And do you have it? Which one? क्या आपके पास है सैमसंग का मोबाइल विद गुड प्रोसेसर एंड गुड क्वालिटी ऑफ कैमरा? आप सैमसंग के फोन है, लेकिन उसमें डिसएडवांटेजेस भी बहुत है. हमारे पास Actually- ओप्पो के फोन है जो No, actually it's a branded company and I need it because its service is quite good. due to some customer service problem, Samsung phones are not No. very variable in this. Actually I had two phone of Samsung and immediately the service is too fast. Even my nearby home the center is there and it's a quite good company. Okay, but you must have a look once at Oppo phone, which is ओके newly. तेजस एंड सुब्रो तो आप दोनों म्यूट कीजिए प्लीज. म्यूट योरसेल्फ. ओके शिवांश आप अनम्यूट कीजिए. शिवांश व्हाट डू यू थिंक तेजस ने आपको कन्विंस कर लिया फोन लेने के लिए? No, ma'am. If he was a salesperson, so आप what are the basic points? Just tell me any two basic points जो आप definitely अपने client को highlight करेंगे in order to convince him to buy the Oppo phone. Ma'am, the servicing of Oppo company is good, and in the city which you are purchasing that phone, it has a good lead in that city, and the processors and according to the usage of yours, it's better than Samsung. Okay, so basically you are trying to suggest जो phone आपको sell out करना है आप उसके features and qualities आप ज़्यादा highlight करेंगे as compared to Samsung, right? Yes, ma'am. Okay, आप म्यूट कीजिए. Okay, candidates, तो यहाँ पर आपका question answer session complete होता है. So now I will be talking about the income structure as well as the job profile. Okay, in case you have any doubts, आपका कोई भी queries हैं, आप सभी note down कर लीजिए. At the end of the interview session, I will give you time to ask the questions and queries, तब आप अपने questions पूछ सकते हैं. Okay. So, first of all, आज जिस भी कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन होता है उनके पास एक ऑफिशियल मेल रिसीव हो जाएगा हमारी कंपनी के साइड से दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड इन आवर कंपनी. ओके, आपके पास आपके मेल में आप चेक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन का लिंक होगा, आपका पर्सनल यूजर आईडी एंड पर्सनल यूजर पासवर्ड होगा. ओके, जैसे ही आपको ये लिंक रिसीव होता है हमारी कंपनी के साइड से, आपके जो भी रिस्पेक्टिव लीडर्स हैं जिनके थ्रू आपको ये इंटरव्यू का लिंक मिला है, आप उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि सर और मैम आई हैव रिसीव्ड द मेल फ्रॉम आवर कंपनी. Is that clear? आपको मेल रिसीव हुआ, आपने अपने लीडर्स को इन्फॉर्म किया. इन्फॉर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप अगेन आप लॉग इन करेंगे, चेक करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल आउट के ऑप्शंस आ रहे हैं. ओके, आप वो इन्फॉर्मेशन फिल आउट करेंगे. इन केस यू हैव एनी डाउट्स, आपका कोई भी क्वेरीज है, डेफिनेटली किसी भी टाइम अपने टीम लीडर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं. दे विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में वो आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे. ओके, सो आपने जैसे इन्फॉर्मेशन फिल आउट किया, आपके डॉक्यूमेंट्स लेवल 1 लेवल 2 अप्रूवल के लिए चले जाते हैं हमारी ब्रांच के पास. ओके, जैसे ही आपका अप्रूवल आता है, इट्स गोइंग टू बी अ फाइनल कंफर्मेशन दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड इन आवर कंपनी. इज दैट क्लियर? आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया, अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड आपका फाइनल कंफर्मेशन आया. फाइनल कंफर्मेशन आने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप चेक करेंगे एक फीस पेमेंट का ऑप्शन आता है. ओके, सो कैन एनीबॉडी टेल मी जिस भी पोर्टल के थ्रू आपने अप्लाई किया वहाँ एक एग्जामिनेशन फीस मेंशन था, IRDAI एग्जामिनेशन फीस. So what is the amount of that fees? Anybody? किसने चेक किया था? Anybody? 585. Yes, you are right. That amount is 585 rupees. Okay, and I have just used the term IRDAI. So what is this term? IRDAI basically stands for Insurance Regulatory and Development Authority of India. जैसे सारे बैंकिंग सेक्टर को RBI रेगुलेट करता है, वैसे ही सारे इंश्योरेंस सेक्टर को IRDAI रेगुलेट करता है. ओके, सिंस यू ऑल वांट टू वर्क विद एन इंश्योरेंस कंपनी, नाउ इट्स मैंडेटरी कि आपके पास एक सर्टिफाइड लाइसेंस जो IRDAI के साइड से, तभी आप इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकते हैं. ओके, जिसके लिए आपका एग्जाम कंडक्ट होता है एंड उसी की एग्जामिनेशन फीस है 585 रुपीज. ओके, ऑनलाइन मोड में आप ये पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं. पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपके पास रिसिप्ट भी रिसीव हो जाएगा दैट यू हैव पेड द एग्जामिनेशन फीस अगेंस्ट द IRDAI एग्जाम. आपने एग्जाम के लिए फीस पेमेंट किया, वो आपके पास रिसिप्ट आ जाएगा. रिसिप्ट रिसीव होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप चेक करिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऑप्शंस आ रहे हैं. ओके, आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे एंड
And on the final stage of the documentation process, for your consent, IRDAI आपसे एक verification करवाता है, okay? And that verification is equivalent to your signature. आप OTP के through या फिर आप link के through भी verification complete कर सकते हैं. That's completely on you, okay? Verification complete करने के बाद आपके documents हमारे head office चले जाते हैं for your training approval. Okay, जैसे ही आपका ट्रेनिंग अप्रूवल आता है, आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है. ओके, योर ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी ऑन 7 to 8 वर्किंग डेज. ऑनलाइन मोड में जूम आपके थ्रू ही आपकी ट्रेनिंग होने वाली है. आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट ऑल द टॉपिक्स, बट मैं आपको कुछ बेसिक टॉपिक बता देती हूँ आपकी ट्रेनिंग पीरियड के. ओके, फॉर एग्जांपल आपको टैक्सेशन के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, बजाज के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स पॉलिसीज के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में थियोरेटिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, एंड यू ऑल कैंडिडेट्स हैव टू सिंसियरली अटेंड दिस ट्रेनिंग because it's going to help you in clearing your IRDAI exam which I just mentioned. Okay, अगर आप sincerely अपना theoretical training complete करते हैं तो आपका जो exam है वो easily आपका clear हो जाएगा. Okay, you are graduate, post graduate here, so easily आप ये exam clear कर सकते हैं. Okay, if I talk about your exam, so training complete होने के बाद within a week आपका exam schedule हो जाता है and आपका exam NSEIT के official center पे जाके होता है. ओके, NSEIT का ऑफिशियल सेंटर मोस्टली हर सिटी में अवेलेबल है इंडिया की. फॉर एग्जांपल आयुष इज फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली का सिलेक्ट कर सकते हैं. सुब्रतो इज फ्रॉम झारखंड, वो झारखंड का सिलेक्ट कर सकते हैं. तेजस इज फ्रॉम तेलंगाना, वो तेलंगाना का सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, इट्स गोइंग टू डिपेंड ऑन यू. आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपना सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट योर एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑफ 50 मार्क्स. 50 मार्क्स का आपका एग्जाम है. 18 मार्क्स इज योर पासिंग मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम है. 18 मार्क्स पासिंग मार्क्स एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. एंड MCQ फॉर्मेट में आपका एग्जाम होगा. इट्स नॉट अ रिटन एग्जाम, आपका MCQ फॉर्मेट में आपका एग्जाम होगा. एंड व्हाट ऑल आर द टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू कम इन एग्जाम सेशन, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस या टॉपिक्स आने वाले हैं वो ऑलरेडी आपको थियोरेटिकल ट्रेनिंग में कवर करवा दिए जाते हैं. ओके, आपको मॉक टेस्ट का एक्सेस दिया जाता है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है. इफ यू सिंसियरली अटेंड दिस ट्रेनिंग तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. देयर वोंट बी एनी इशू इन दैट. ओके, सो एग्जाम क्लियर करने के बाद विद इन 24 आवर्स आपके पास एक IC अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, IRDAI से लाइसेंस. ओके, नाउ यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग आपको एक IC अपॉइंटमेंट लेटर क्यों दिया जा रहा है व्हेन यू हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ रिटेल पार्टनर. मैं आपको उसके पीछे की रीजन भी बता देती हूँ. स्टार्टिंग में टेम्पररी आपको एक IC अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है so that our company can provide you practical income and आप अपने practical training assignment complete कर सकें. These are the main reason behind आपको starting में temporarily एक IC appointment letter दिया जाता है. Okay, if I talk about एक retail partner का हमारी company में main work क्या है, आप लोग का main काम क्या होगा? So एक retail partner का हमारी company में main work होता है recruitment and business development. Okay, अगर मैं recruitment की यहाँ बात करूँ, तो जिस candidate ने already हमारी company में apply किया हुआ है वो एप्लीकेशंस आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं. यू जस्ट नीड टू फॉलो अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ आवर कंपनी. आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके मिनिमम 4 लोगों को रिक्रूट करना है एंड उनसे बिजनेस डेवलपमेंट करवाना है. दिस इज योर फर्स्ट ट्रेनिंग असाइनमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिमम 4 पीपल एंड बिजनेस डेवलपमेंट. इसके लिए आपको कंपनी की साइड से एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाएगा कैंडिडेट्स का जिन्हें आपको रिक्रूट करना है. आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा कैसे आप रिक्रूट कर सकते हैं. जस्ट यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एंड रिक्रूट द पीपल. इज दैट क्लियर? फर्स्ट असाइनमेंट सबको क्लियर है? ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट अब आप लोगों का टीम बन गया है, सो बेसिकली आप अपनी टीम से काम क्या करवाएंगे? ओके, सिंस यू ऑल आर कमिंग इन इंश्योरेंस सेक्टर, सो डेफिनेटली आप अपनी टीम से इंश्योरेंस से लॉट करेंगे, राइट? ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको बोलने वाले है कि होम अप्लायंसेस या ऑटोमोबाइल कोई थर्ड प्रोडक्ट आप सेल आउट कराइए. आपको इंश्योरेंस से सेल आउट कराना है अपनी टीम से. ओके, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप you don't have any experience in insurance sector, so you guys tell me आप अपनी टीम को efficiently लीड कैसे करेंगे? मान लीजिए कल को सुब्रतो के पास कोई टीम मेंबर आता है एंड बोलता है सर मेरा क्लाइंट रेडी है, who is looking for an investment of 5 lakh rupees, बट उन्हें पता ही नहीं है कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना उनके क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है या फिर किस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. सो विल सुब्रतो बी एबल टू हैंडल ऑल हिज टीम क्लाइंट राइट नाउ? उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंश्योरेंस सेक्टर का, वो कैसे हैंडल करेंगे, राइट? So to overcome all these hurdles, company ने आपका second assignment डिजाइन किया. And your second assignment is आपको 50,000 की 6 पॉलिसी सेल आउट करके दिखाना है. Okay, that is in total आपको 3 लाख रुपीस का बिजनेस सबमिशन करके दिखाना है, which is your one time sale assignment. कंपनी आपको सेकंड टाइम सेल करने कभी नहीं बोलने वाली है. वो ये ट्रेनिंग पीरियड ही आपको ये सेल असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है. That is part of the practical training assignment. Okay, and इस practical training assignment के लिए कंपनी आपको practical income प्रोवाइड करता है. So your practical income is going to be 35% of 3 lakh rupees. Can anybody tell me what is 35% of 3 lakh rupees? Anybody? 35% of 3 lakh rupees.
1,05,000 rupees. So 1,05,000 is going to be a practical income for your training period. Okay, जो आपका practical income होने वाला है training period के लिए वो होने वाला है 1,05,000 rupees का. Okay, and जो मैंने आपको अभी business submission की बात किया है, बात किया है वो आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप 50,000 की 6 पॉलिसी के फॉर्मेट में कीजिए, आप 1 लाख की 3 पॉलिसी के फॉर्मेट में कीजिए, या फिर आप 3 लाख की 1 पॉलिसी के फॉर्मेट में कीजिए. दैट्स कंप्लीटली ऑन यू. ओके, सो ये आप पे डिपेंड करेगा, आप किसी भी फॉर्मेट में ये बिजनेस सबमिशन कर सकते हैं. इन टोटल आपको 3 लाख रुपए का बिजनेस सबमिशन करके दिखाना है, एंड जिसके लिए कंपनी आपको प्रैक्टिकल ओके सो आपका जो 2 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असाइनमेंट है, दे आर आपको फर्स्ट आपको मिनिमम 4 लोगों को रिक्रूट करना है एंड उनसे बिजनेस डेवलपमेंट करके दिखाना है. सेकंड आपको 3 लाख रुपए का बिजनेस सबमिशन करके दिखाना है, व्हिच इज अ वन टाइम सेल असाइनमेंट. ओके, एंड आपको जो प्रैक्टिकल इनकम होगा फॉर योर ट्रेनिंग पीरियड इज गोइंग टू बी 1,05,000 रुपीस. ओके, एंड यस कैंडिडेट्स, इन ऑर्डर टू रिसीव दिस इनकम, इट्स नॉट लाइक कि आप दोनों असाइनमेंट कंप्लीट करोगे तभी आपको ये इनकम रिसीव होगा. मान लीजिए अतुल ने अपना 1 लाख का बिजनेस सबमिशन किया, सो 1 लाख का 35% दैट इज 35,000 उन्हें रिसीव हो जाएगा. मान लीजिए तेजस ने अपना 2 लाख का सबमिशन किया, सो उनका 2 लाख का 35% दैट इज 70,000 उन्हें रिसीव हो जाएगा. मान लीजिए अगर आयुष या शिवांश ने अपना 3 लाख का कंप्लीट किया, सो उन्हें 1,05,000 रिसीव हो जाएगा. ओके, जैसे जैसे आप सबमिशन करेंगे वैसे वैसे अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा. ओके, आपको दोनों असाइनमेंट कंप्लीट करने का वेट नहीं करना है इन ऑर्डर टू रिसीव द इनकम. ओके, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक रिटेल पार्टनर का हमारी कंपनी में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपका इनकम स्ट्रक्चर क्या होगा. सो एक रिटेल पार्टनर को हमारी कंपनी में पीएफ, मेडिकल फैसिलिटी, फिक्स इनकम एज वेल एज इंसेंटिव प्रोवाइड होता है. ओके, सो पीएफ, मेडिकल फैसिलिटी एंड फिक्स इनकम, जो आपका बेसिक सैलरी होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 19,000. ओके, एंड आप सभी जानते हैं यहाँ कोई भी पेरोल नहीं आता है, यहाँ सभी लोग इंसेंटिव भी आते हैं. इफ आई टॉक अबाउट इंसेंटिव, सो एक रिटेल पार्टनर को हमारी कंपनी में मंथली परफॉर्मेंस इंसेंटिव, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डअप इंसेंटिव, जीपीआई, एनपीआई एज वेल एज आपको एडिशनल रिक्रूटमेंट रिवॉर्ड्स एंड पावर रिवॉर्ड रिसीव होता है. ओके, मैं आपको एक कैलकुलेशन फॉर्म में बताती हूँ आपको ये रिवॉर्ड्स कैसे मिलने वाले हैं. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आयुष. मान लीजिए आयुष का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, वो आराम से 10 लोगों को रिक्रूट कर सकता है 1 महीने में. एम आई राइट? 1 महीने में आप 10 लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं. सो मान लीजिए आयुष आपने 10 लोगों को रिक्रूट किया है एंड आपके सिर्फ 5 टीम मेंबर ने काम किया है, 5 ने काम ही नहीं किया है. ओके, जिस 5 टीम मेंबर ने आपके काम किया है, they have done a very basic work, that is they have just activated the code with 50,000 rupees. Okay, so आपका टीम का बिजनेस सबमिशन कितना हुआ? 5 into 50, 2.5 lakh rupees. Am I right? Am I right? Okay. So for every 50,000 rupees, आयुष को कंपनी 16,000 इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा. 16,000 is going to be the incentive for every 50,000 rupees. Okay, since आयुष का बिजनेस सबमिशन है 2.5 lakh rupees का, so 16 into 5, 80,000 is going to be the incentive जो आयुष को उस मंथ के लिए रिसीव होगा. ओके, एंड 19,000 आयुष का बेसिक सैलरी है. सो 80 प्लस 19, 99,000 इज द अमाउंट जो उस मंथ के लिए आयुष के अकाउंट में क्रेडिट होगा. ओके, दिस इज हाउ इंसेंटिव आर कैलकुलेटेड इन आवर कंपनी एंड यू ऑल नो नॉट ऑल द कैंडिडेट्स आर सेम. कोई आपका 1 लाख का, कोई 2 लाख का, कोई 3 लाख का सबमिशन करेगा. सो आप लोग अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका इंसेंटिव कितना होने वाला है. मैंने जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया कि आपका इंसेंटिव कैलकुलेट कैसे होता है. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर प्रमोशन क्राइटेरिया, सो एक रिटेल पार्टनर बनने के बाद जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन द पोस्ट ऑफ सीनियर रिटेल पार्टनर. एंड एक सीनियर रिटेल पार्टनर की हमारी कंपनी में सैलरी है 42,000 रुपीज एंड डेफिनेटली इंसेंटिव आपके वहां भी कंटिन्यू होंगे. एक सीनियर रिटेल पार्टनर बनने के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन द पोस्ट ऑफ चीफ रिटेल पार्टनर. एंड एक चीफ रिटेल पार्टनर की हमारी कंपनी में सैलरी है 52,000 रुपीज एंड इंसेंटिव आपके वहां भी कंटिन्यू होंगे. चीफ रिटेल पार्टनर बनने के बाद भी आपका प्रमोशन नहीं रुकेगा. जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन द पोस्ट ऑफ मैनेजर्स. ओके, एंड देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मैनेजर्स इन आवर कंपनी. फॉर एग्जांपल टेरिटरी मैनेजर, डेप्यूटी टेरिटरी मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर. आई वोंट बी गोइंग इन इनकम स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजर्स राइट नाउ. जब आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में आते हैं तब आपको क्लैरिटी मिल जाता है कि आपका मैनेजर के पोस्ट से प्रमोशन कैसे होगा. ओके, मैनेजर से आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया कि आपको किस किस पोस्ट से प्रमोशन हो सकता है. इज दैट क्लियर? एंड यस, इन ऑर्डर टू रिसीव दिस प्रमोशन देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया कि आपको 1 साल या 2 साल हमारी कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा तभी आपका प्रमोशन होगा. ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया यहाँ हमारी कंपनी में नहीं है. ओके, मान लीजिए कि अतुल ने रिटेल पार्टनर बनने के बाद 3 महीने में ही सीनियर रिटेल पार्टनर का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया,
तो उनका 3 महीने बाद ही प्रमोशन हो जाएगा सीनियर रिटेल पार्टनर के पोस्ट पर। मान लीजिए अगर शिवांश ने 1 साल के अंदर मैनेजर का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो उनका मैनेजर के पोस्ट पे प्रमोशन हो जाएगा। Okay, so what I'm trying to say is आपका promotion is completely depend on your own work, आपके hard work पे depend करेगा। There's no fixed criteria from our company side कि आपको minimum 1 साल या 2 साल काम करोगे तभी आपका promotion होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। Okay, now all those candidates जिसको लगता है who want to work with our company, only those candidates will be sending me 5 documents. आप सभी note down कर लीजिए what are these 5 documents. First is going to be your name as per your documents. आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में जो आपका ऑफिशियल नेम है आप वो लिखेंगे। सेकंड आपका फोन नंबर लिखेंगे। थर्ड आपका ईमेल आईडी लिखेंगे जिससे ऑफिशियल मेल रिसीव होंगे आपको हमारी कंपनी की साइड से। फोर्थ आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे एंड फिफ्थ आप पैन कार्ड नंबर लिखेंगे। ओके, आई एम रिपीटिंग these 5 documents again. First is going to be your name, second your phone number, third your email ID, fourth your PAN card number and fifth your date of birth. Okay, since you all can see this is a recorded session. एंड जैसा कि निशा मैम ने आपको स्टार्टिंग में ही इन्फॉर्म किया आपका रिजल्ट हेड ऑफिस से बन के आता है। सो इन ऑर्डर टू सेंड योर रिजल्ट दिस डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड जो मैंने अभी आपसे मांगा है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स 2 बजे तक आपके रिस्पेक्टिव लीडर्स को ही सेंड करना है एंड योर लीडर्स आर जिनके थ्रू आपको ये इंटरव्यू का लिंक मिला है, दे आर योर लीडर्स। ओके, आपको उन्हें ही ये 5 डॉक्यूमेंट सेंड करना है। ओके, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोज वगैरह को सेंड नहीं करना है, जस्ट राइट द डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको मांगा है मैंने, जस्ट राइट दिस एंड आप सेंड कर सकते हैं, रिटर्न फॉर्म में सेंड कीजिए। ओके, सो 2 बजे तक आपके पास टाइम है ये डॉक्यूमेंट सेंड करने का एंड इफ यू आर सिलेक्टेड इन आवर कंपनी आज शाम को 7 बजे तक आपको मेल रिसीव हो जाएगा हमारी कंपनी की साइड से। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप 2 टाइम याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट सेंड करने का टाइम है आपके पास 2 बजे तक का एंड आपका जो रिजल्ट अनाउंस होगा दैट इज गोइंग टू बी बाय 7 PM। ओके, सो नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आपका कोई भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीबॉडी एनी डाउट्स? मैम मैं ये पूछ रहा था, मैं अभी यहाँ पे सेल्स मैनेजर के डेजिग्नेशन पे हूँ और मेरा 3.5 लाख का पैकेज है पर एनम, तो ये तो मेरे लिए नीचे जाने जैसी बात हो जाएगी। ओके, जो आप रिटेल पार्टनर के लिए बता रहे हैं। ओके, सो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप अपना जॉब रिजाइन मत कीजिए फॉर योर ट्रेनिंग पीरियड। जब तक आप रिटेल पार्टनर नहीं बनते अपना ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करके तब तक आप वेट कीजिए, आप एज अ पार्ट टाइम ज्वाइन कीजिए तब तक। रिटेल पार्टनर बनने के बाद देन यू कैन रिजाइन। ओके, अभी आई वोंट बी आस्किंग बिकॉज़ आपका ऑलरेडी जॉब है, सो आई वोंट बी आस्किंग कि आप वो जॉब छोड़ के ये जॉब ज्वाइन कीजिए, बट आप एटलीस्ट इसके रिगार्डिंग काम कीजिए, आप अपने टीम लीडर से कांटेक्ट कीजिए। ओके, दे विल गाइड यू बेटर इन दिस प्रोसेस। ओके, आप म्यूट कीजिए प्लीज। एनीबॉडी एल्स एनी डाउट्स? ओके कैंडिडेट्स, इन केस अगर आपको कोई डाउट्स रह जाता है जो अभी आपको इंटरव्यू सेशन में क्लियर नहीं हुआ है, डेफिनेटली आप अपनी टीम लीडर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, दे विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके, ऐसा कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैंने आपको इंटरव्यू में बताया एंड दे डोंट नो अबाउट दैट। ओके, सो मेक श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर करके तभी आप ये डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे आपके रिस्पेक्टिव लीडर्स को। इज दैट क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट कैंडिडेट्स, जिसका भी सिलेक्शन होता है हमारी कंपनी में, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर रिजल्ट। ओके, हैव अ गुड डे।